गर्भ संस्कार इज जस्ट 5 वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स कि आप अपने बेबी को अपने आप से कैसे कनेक्ट कर सकते हो वूम के अंदर ही. Meet Dr. Reema Ranka, a women's health physiotherapist and a childbirth educator. Anji, silence please! She's passionately working towards women's health in infertility, pregnancy, postpartum, menopause, PCOD and other things. Most people think pregnancy handle करना सिर्फ एक औरत का काम होता है. मैं बोलूँगी प्रेगनेंसी में जो हस्बैंड्स का रोल है दैट इज इररिप्लेसेबल. हस्बैंड्स को थोड़ा टाइम लगता है कि अच्छा ठीक है मैं भी एक बाप बनने वाला हूँ. शी कैन एक्चुअली हैंडल द पेन बट व्हाट शी वांट्स इज दैट यू टेक आउट अ लिटिल 2 minutes ऑफ योर टाइम एंड गिव हर अ लिटिल मसाज. एंड व्हेन अ मदर इज हैप्पी द बेबी इज डेफिनेटली अ हैप्पी बेबी. Can I offer you something? What? Did you like it? Yeah, We covered everything. Yeah. ये दूसरा कैमरा भी चेक कर लेना, कट किया ना. Today, let's talk to her about Garbh Sanskar and other best practices for a healthy pregnancy. एक मुझे किसी जेंटलमैन का मैसेज आया था कि प्लीज़ कुछ टिप्स दीजिए, मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है, वो तो मोटी होती चली जा रही है. शी इज़ लुकिंग लाइक अ काउ. एक औरत है जो आपका बच्चा Exactly. वो पैदा कर रही है. शी इज़ गोइंग थ्रू फिजिकली सो मच डिस्कम्फर्ट विच यू कैन नॉट इवन इमेजिन. इस तरह से आप उसको रीपे कर रहे हैं. एज अ हस्बैंड प्लीज डोंट बी अ मिरर. उसका आईना मत बनो, उसकी परछाई बनो. तो सी सेक्शन को लेकर इतना ज़्यादा टैबू क्यों है? So the 7 layers of body are being cut to deliver a baby. It is like a massive abdominal surgery. तो जब कोई भी दूसरी सर्जरी होती है तुम्हारा केयर होता है, 1-2 महीने तुम रेस्ट पे होते हो. ये एक ऐसी सर्जरी है कि इमीडिएटली नेक्स्ट आवर तुमको बेबी को फीड करना है एंड 24/7 उसका ध्यान रखना है. So it is obviously difficult, and with that I want to add normal delivery is also not easy. Hi guys, before I start the episode, I just wanted to thank all of you for subscribing to my podcast. And I was going through the analytics and I saw that 82% of my audience is women. तो comments में भी मैंने पढ़ा कि बहुत सारी महिलाओं ने महिलाओं से related topics suggest किए हैं बात करने के लिए, and that's why we've chosen today's guest and today's topic. I'm really happy to read the comments and I'm really happy that you all are engaging with the podcast so much. Please keep doing that and please don't forget to subscribe because सारे guests जो podcast पर आ रहे हैं और सारे topics जिन पर हम discussion कर रहे हैं वो कुछ भी possible नहीं होगा आपके support के बिना. So keep supporting me and subscribe to the podcast on YouTube or follow it on any audio platform that you use. Thank you so much. Let's dive into the episode. Dr. Reema Ranka, Yes. how are you doing? I'm doing completely fine. What about you? I'm absolutely good too. सबसे पहले तो congratulations, you just became a mother. Yes. Very very big deal that is. Yeah, that is a milestone of my own life. Yeah, I think मेरी life का भी one of the biggest milestones is when I became a mother the first Yes. time and then the second time. Yes. Is this your first? This is my first and it's a baby girl. Okay. So जैसे लोग बोलते हैं हमको लक्ष्मी हुई है, मैं बोलूँगी मुझे सरस्वती हुई है because you learn so much when you become a parent. All your education put to one side and becoming a parent, एक माँ बनना, तुम इतनी चीज़ें लेयर बाय लेयर सीखते हो इन डेप्थ. द फीलिंग्स, द इमोशंस, द नॉलेज सब एक साइड और माँ बनना एक साइड है. और आप तो वैसे भी in the field of women's health you're working so much. Yeah. So I mean all the better that you have a girl child. Yeah. You know, it's like another form of blessing. Yeah. So we are all girls team at my mother's place. We are 3 daughters and having 4 nieces, all girls. All. Is that why you work for women's health? No, not really. I worked for women's health because when I was in college, this was one category that nobody really liked. Everybody was not very interested in going into the women's ward in the delivery section, and but I don't know why it intrigued me कि ये क्या है and how can you help women to deal with pain without giving medicines. Because labor pain एक ऐसी चीज़ है कि ना तुम दवाइयाँ खा सकते हो, प्रेगनेंसी में तुम दवाइयाँ नहीं खा सकते. अगर आप फिजियोथेरेपी और ये जो है एक्सरसाइजेस वगैरह से अपने आप को प्रेगनेंसी को बेटर कर सकते देन व्हाई नॉट. एंड दैट इज़ व्हाई आई वांटेड टू डाइव डीप इनटू दिस और I went into this. And now you teach Garbh Sanskar to pregnant women. Yeah. So tell me, what is Garbh Sanskar exactly? तो गर्भ संस्कार इज एक्चुअली वन ऑफ द 16 संस्कार जो हिंदुइज्म में डाले जाते हैं एक ह्यूमन बीइंग में. तो गर्भ संस्कार का एक बहुत वास्ट अगर आप इंस्टाग्राम पे या कहीं रीड करोगे आपको लगेगा कि यार ये कितना सारा है, ये इसको बहुत ही एक रिलीजियस इंक्लिनेशन है.
बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी लोग समझते हैं कि हमें बहुत सारा चैंटिंग करना होगा, ये करना होगा, एंड इसलिए वो ये नहीं करना चाहते हैं। बट गर्भ संस्कार इज़ जस्ट 5 वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स कि आप अपने बेबी को अपने आप से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, वूम के अंदर ही कैसे उसको काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकते हो, कैसे उसके माइंड को शार्प बना सकते, राइट ब्रेन को, लेफ्ट ब्रेन को। अब आप जब ये घर वालों को बोलोगे कि मुझे गर्भ संस्कार करना है, वो बोलेंगे ये बहुत फैंसी टर्म है, हमने तो ये सब कुछ नहीं किया था, तुम्हें बड़ा गर्भ संस्कार करना है। बट ये सारे लोग गर्भ संस्कार किए करते थे विदाउट इवन नोइंग। How? इफ़ यू नो, ऑल जो पुराने ज़माने की औरतें थी वो प्रेगनेंसी में कैसे दिखाए जाते थे, निटिंग करते थे। नाउ व्हेन यू आर निटिंग, जब आप निटिंग कर रहे हो, यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ योर राइट ब्रेन, एंड अ लॉट ऑफ कलर कॉम्बिनेशन, क्रिएटिविटी विच इज़ योर लेफ्ट ब्रेन। तो विदाउट इवन नोइंग वो नेचुरली काफ़ी राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटीज़ करती थी, घर के सारे काम करती थी, क्रिएटिव खाना बनाती थी, एंसेस्टर्स से जुड़ी रहती थी, रामायण सुनती थी, महाभारत सुनती थी। बट आई थिंक मॉडर्न वीमेन वी डोंट गेट अ चांस टू डू ऑल ऑफ दिस, और इसलिए हमें गर्भ संस्कार अलग से करना पड़ता है और करना चाहिए। बिकॉज as I see it even in my daughter, she is so calm, if you listen to particular rhymes and things, you can connect with the baby very easily post delivery. आपकी जर्नी easy हो जाती है more than the children or the kid. So I think it is a बहुत पावरफुल टूल है जो सबको टैप इन करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट और रिलीजन। और प्लीज़ ऐसा मत सोचे कि बहुत सारा जाप मंतर तंत्र करना पड़ेगा, बहुत प्रेयर करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल 4-5 सिंपल चीज़ें हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में आप इंक्लूड कर सकते हो। तो एक तो हुआ ये निटिंग और क्रिएटिव एक्टिविटीज़, और क्या होता है इसमें? तो मैं बोलूँगी इसमें प्रेयर भी थोड़ा सा होता है। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। हम सब रोज़ सुबह भगवान का पूजा करते हैं, हर एक के घर में होता है। कोई 10 बजे करता है, कोई 11 बजे, कोई सुबह 7 बजे, 8 बजे। बट शाम को एक टाइम फिक्स्ड होता है विच इज़ 7:15 एट द टाइम ऑफ होराइजन, जब सन और मून दोनों स्काई में है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम है कि हर जगह आरती होती है, भले वो हिंदू मंदिर हो, जैन मंदिर हो, चर्च हो, अजान हो। क्यों बताइए। दैट इज़ बिकॉज एट दैट टाइम, तो साइंटिफिकली हम जब बोलेंगे तो सन और मून दोनों की पावर्स या मैग्नेटिक फील्ड्स, दे आर इन द एयर, एंड वी ऑल, हम सब मैग्नेटिक एनर्जीज पे वर्क करते हैं, मून के फोर्स पे वर्क करते हैं, इमोशंस पे वर्क करते हैं। तो इवन छोटे से छोटा बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा इंसान शाम को बहुत ही चिड़चिड़ा फील करता है। 7:15 एक एनर्जी ड्रॉप होता है, अनईजी फील होता है। तो वो टाइम पे जब हम भगवान से कनेक्ट करेंगे, बेल्स रिंग होते हैं, बॉडी की वाइब्रेशंस चेंज होती है और आप बेटर फील करते हो। ये है साइंटिफिक रीज़न। माइथोलॉजिकली ऐसे बोलते हैं कि विष्णु प्रभु नीचे आते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं कि सब ठीक है, सब सही है एंड ऑल दैट। बट साइंटिफिकली बहुत ब्यूटीफुल इसका रीज़न है, एंड इसलिए हम गर्भ संस्कार में बोलते हैं कि शाम को 7:15 जस्ट लाइट अ लिटिल लैम्प, सिट विथ योर चाइल्ड, अच्छी बातें बोले, जो भी आप बोलना चाहते हो, दैट आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत काम हो, यू कनेक्ट विथ मी सो वेल, such simple things. So is this something you do when you're pregnant? Yeah, you do it when you're pregnant, when your baby is in the womb. So this is what you can do to connect with your baby, and I think it is very easy for even working women. ऐसा नहीं कि आपको कोई अलग से कुछ करना पड़ेगा। आप भले अपने ऑफिस में 2 मिनट साइड में आके just talk to your baby at the time of horizon, as simple as that. तो और क्या करना होता है? लाइक यू तो डू प्रॉपर क्लासेस गर्भ संस्कार की, Yes. आप सिखाती हैं सबको। तो ये जो क्लासेस आप लेते हो, ये इज इट लाइक अ वन सेशन और इज इट लाइक अ वीकली क्लास? So I am a child birth educator, तो इसमें हम सीरीज ऑफ सेशंस रहते हैं जिसमें गर्भ संस्कार इज अ पार्ट। ओके। तो हम डाइट, न्यूट्रिशन, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, कैसे करना है, बिकॉज एक प्रेग्नेंट लेडी के दिमाग में इतने क्वेश्चंस होते हैं। तो अगेन पीपल से कि ये क्लासेस की क्या ज़रूरत है, हमने तो प्रेगनेंसी ऐसे हैंडल कर दी। पर जब तब जॉइंट फैमिलीज होती थी, बहुत सारा नॉलेज आता था, और तब सोशल मीडिया नहीं होता था, जब बहुत सारा फॉल्स इन्फॉर्मेशन आता था, है ना। तो एक प्रेग्नेंट लेडी कंफ्यूज हो जाती है। अगर ये गर्भ संस्कार की भी रील्स देखती है तो काफ़ी मॉडर्न वीमेन लेफ्ट आउट फील करती है, यार मैं तो नहीं कर रही हूँ, तो आई एम अ बैड मदर, मैं इतना टाइम नहीं दे रही हूँ अपने बेबी को, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा। बहुत
ओवरवेलमिंग हो जाता है कभी कभी सोशल मीडिया कि देख देख के यार लोग कितना कुछ कर रहे हैं प्रेगनेंसी में, इतना वर्कआउट कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, कितना डाइट कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ। तो सोशल मीडिया ओवरवेल्म्स यू। और जो घर के लोग हैं कभी अच्छे के लिए बोलते हैं पर कभी बहुत सिली मिथ्स, जैसे कि केला खाने से बच्चा बाहर निकल जाएगा, राइट, नारियल पानी पीने से बच्चे का सर नारियल जैसा हो जाएगा। oh really? यही पूछते हैं मुझे लोग। अच्छा, कई 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 जगह पे 7-7 महीने तक बाल तुम नहीं धो सकते। ओह, हाँ, तो ये बहुत मिथ्स है इंडिया में, अलग अलग अलग। और माई डीएम्स आर फिल्ड विद, एक बहुत फेमस मिथ है रसगुल्ला खाने से बच्चा गोरा हो जाएगा। बहुत फेमस मिथ है। तो उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि रसगुल्ला इज़ वेरी गुड फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी। इट्स हाई इन कैल्शियम, इट्स हाई इन फॉलेट, तो बच्चे की हर रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो जाती है। पर अगर हम लेडीज़ को बोलेंगे आप ये खाओ, तो वो शायद अपने लिए करे ना करे, बच्चे के लिए अच्छा है, ठीक है मैं खा लूँगी। तो इसलिए लोगों ने ये सारे मिथ्स कॉइन कर दिए और हम ऐसे ही फॉलो करते गए और रीज़न कुछ और बनता गया। तो ये क्लासेस क्या करती है, यू हैव समवन जो आपके साथ 24/7 है, जो आपको बताएगा कि ठीक है आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। प्रेगनेंसी में आप जब भी गूगल करोगे दिस इज़ पेनिंग, इट्स नॉर्मल, ये हो रहा है वो नॉर्मल हाँ, है, correct. वो हो रहा है वो नॉर्मल है, Correct. सब कुछ ही नॉर्मल है, कोई भी पेन होने दो नॉर्मल है। बट द रियलिटी इज़ दैट यू कैन एक्चुअली टैकल एवरी पेन, यू कैन एक्चुअली टैकल योर हेल्थ, योर इमोशंस एंड एवरीथिंग। और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेशन होता है लेबर पेन मैनेजमेंट, वो होता है पार्टनर्स के साथ, बिकॉज प्रेगनेंसी में पार्टनर्स का रोल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मतलब ये जो गर्भ संस्कार का लास्ट सेशन जो आप बोल रहे हो, सिर्फ वो इज मैंडेटरी फॉर हस्बैंड्स आल्सो टू कम एंड जॉइन? या तो दैट इज अ लेबर पेन Not the मैनेजमेंट, whole- not the whole थिंग course. Okay. दैट यू कैन अटेंड ऑन योर ओन। ओके, बट द लेबर पेन मैनेजमेंट, बिकॉज मैं बोलूँगी प्रेगनेंसी में जो हस्बैंड्स का रोल है दैट इज़ इररिप्लेसेबल। I think let's talk a little bit about it because most people think pregnancy handle करना सिर्फ एक औरत का काम होता है. Let's talk about what the men's responsibility is in this. सो मेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ राइट फ्रॉम द डे जब उसको पता चलता है दैट वो माँ बनने वाली है, आई थिंक इमोशंस इमिडिएटली किक इन करते हैं। हस्बैंड्स को थोड़ा टाइम लगता है कि अच्छा ठीक है मैं भी एक बाप बनने वाला हूँ। वो सिर्फ देखते हैं कि ये बहुत चेंज हो रही है, बहुत चिड़चिड़ी हो रही है, गुस्सा कर रही है, क्यों कर रही है, फिगर आउट नहीं कर पाते कि ये तो खुशी की बात है ना, हाँ. माँ बन रही है, इतना चिढ़ क्यों रही है। एंड दिस इज़ द थिंग दैट द हस्बैंड्स हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके बॉडी में ना सिर्फ फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल, मेंटल, फिजिकल, और हर कोई आके कुछ ना कुछ ज्ञान देके जा रहा है, तो वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। एंड ऑल ऑफ अस आर नाउ मॉडर्न वुमेन आर सो इंडिपेंडेंट दैट अचानक से आपकी पूरी डिपेंडेंसी शिफ्ट हो गई है। आप सडनली धीरे चलना है, संभल के उठना है, संभल के, ऐसा लग रहा है क्या मैं कोई बीमार हो गई हूँ, क्या हुआ है मेरे साथ। तो इट इज़ द हस्बैंड्स हु हैज़ टू बी देयर। पहले लोग समझते थे, और यू नो द फॉर्म ऑफ लव लैंग्वेज वुड बी कि कुछ क्या खाना है तुझे, मैं ये लेके आऊँगा, मैं वो लेके आऊँगा। आज के हस्बैंड्स बोलते हैं ये खाना है, ठीक है स्विगी कर ले, जोमेटो कर ले। हाँ. But it is not the craving that the woman is having. What the woman is actually craving is that love, that care, that attention. कि अच्छा मुझे ये खाना था और वो all the way गया और वो लेके आया। स्विगी और जोमेटो तो मैं भी कर लूँगी ना। हाँ, तो मैं क्यों आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मुझे चाहिए कि आप मेरे लिए वो चीज़ लेके आओ और मेरे को खिलाओ, या यू नो जस्ट पैम्पर करो। जब एक बच्चा पेट के अंदर आता है तुम भी एक बच्चे बन जाते हो, एंड यू क्रेव ऑल द अटेंशन, बिकॉज कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक इनसिक्योरिटी घूम रही होती है कि बच्चा आने के बाद शायद हमारी रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी, शायद मैं एक बैकफुट ले लूँगी, मे बी द किड विल बी अ प्रायोरिटी और मैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहूँगी। सो शी वॉन्ट्स टू ग्रैब ऑल द अटेंशन दैट इज़ पॉसिबल, और इसीलिए वो छोटी 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 फरमाइशें करती है जो कभी कभी हस्बैंड इसे डिसमिस कर देते हैं। दुख रहा है, हाँ ठीक है तो बाम लगा ले, दवा ले ले, डॉक्टर को पूछ ले, दर्द हो रहा है, शी कैन एक्चुअली हैंडल द पेन, बट वॉट शी वॉन्ट्स इज दैट यू टेक आउट अ लिटिल 2 minutes ऑफ योर टाइम एंड गिव हर अ लिटिल मसाज एंड गिव हर अ लिटिल बेली रब। सिर्फ 2 मिनट अच्छे से बात कर लो, कहीं उसे बाहर लेके जाओ, उसे
उसे एक थोड़ा खुली हवा में ले जाओ, इट विल मेक सो मच डिफरेंस इन हर हेल्थ. एंड व्हेन अ मदर इज़ हैप्पी, द बेबी इज़ डेफिनेटली अ हैप्पी बेबी. ये मैं प्रैक्टिकली भी देख रही हूँ कि तुम जितना प्रेगनेंसी रो रो के निकालोगे, उतना ही बेबी क्रैंकी या चिड़चिड़ा निकलेगा. जितना आपने एक हैप्पी प्रेगनेंसी रखी है, पॉसिबल है, देन डेफिनेटली द बेबी इज़ हैप्पी. एंड ऐसा नहीं कोई जानबूझ के रो रहा है, कोई जानबूझ के ये कर रहा है. जस्ट गिव हर सम टाइम. बैठो 2 मिनट उसके साथ. शी डज नॉट वॉन्ट योर एडवाइस कि क्या ये क्यों बोल रही है, मम्मी ने तो ऐसे ही बोला होगा, या शी डज नॉट वॉन्ट योर एडवाइस. शी जस्ट वॉन्ट्स अ लिसनिंग ईयर. तो मैं मेरे क्लास में भी हमेशा बोलती हूँ दैट एज अ हस्बैंड प्लीज़ डोंट बी अ मिरर. उसका आईना मत बनो, उसकी परछाई बनो. आईना उसके पास है. शी नोज, उसको दिख रहा है कि हाँ मैं मोटी हो रही हूँ, मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे पिंपल्स आ रहे हैं, मैं ऐसे हूँ. मत बताओ उसको. उसको एक परछाई चाहिए कि चाहे तेरा कोई भी फॉर्म है, आई एम देयर, मैं पीछे हूँ और मैं तेरे साथ हूँ. मुझे नहीं जानना कि यार तू वेट गेन कर रही है, पिंपल्स आ रहे हैं तेरे बाल को क्या हो गया. नहीं सुनना है उसको. उसको ये सुनना है कि whatever, you are the most beautiful woman for me. That's such a beautiful message that you've given to all the men. And I remember when I was pregnant, और मैं काफ़ी सारी पोस्ट अपनी डालती थी प्रेगनेंसी के दौरान. तो एक मुझे किसी जेंटलमैन का मैसेज आया था कि प्लीज़ कुछ टिप्स दीजिए, मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है, वो तो मोटी होती चली जा रही है, शी इज़ लुकिंग लाइक अ काउ. तो मुझे बहुत गुस्सा आया था वो मैसेज पढ़ के, और मुझे इतना बुरा लगा कि एक औरत है जो आपका बच्चा एग्जैक्टली वो पैदा कर रही है, शी इज गोइंग थ्रू फिजिकली सो मच डिस्कम्फर्ट विच यू कैन नॉट इवन इमेजिन. करेक्ट. और ये आप उसको इस तरह से आप उसको रीपे कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग हर लव एंड शोइंग हर सपोर्ट द वे यू आर सेइंग. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल fathers to be fathers. Please be sensitive towards your wives who are going to be the mothers of your child. Very very important message. Right. And आप जो ये जो डिस्कम्फर्ट की जो आप बात कर रहे हो कि पेन होता है या बाल गिरने लगते हैं या पिंपल्स होने लगते हैं, ये सब क्यों होता है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? तो ये सारी हार्मोनल चेंजेस हो जाती है बॉडी में, बिकॉज ऑब्वियसली योर बॉडी हैज़ टू अडेप्ट टू ग्रो अ बेबी. बहुत सारे हस्बैंड्स कंपेयर करते हैं कि ये ना प्रेगनेंसी में बहुत ही फंबली हो गई है, सब कुछ गिरा देती है. बट इट इज़ योर बॉडी विच इज़ रिलीजिंग रिलैक्सिन हॉर्मोन्स, ताकि आपके बोन्स रिलैक्स होके बेबी को ग्रो करने को स्पेस बनाए. इसलिए योर हैंड्स बिकम बटरी एंड एवरीथिंग फॉल्स फ्रॉम योर हैंड. तो हर चीज़ का एक रीज़न है और उसको हम टैकल कर सकते हैं विथ एक्सरसाइजेस. काफ़ी लोगों को बैक पेन होता है प्रेगनेंसी में, हम बोलते हैं वो तो होगा ही, वो तो तुझे झेलना ही पड़ेगा. पर वो झेलना नहीं पड़ेगा. तुम एक्सरसाइजेस करो, तुम अपने कोर को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने ग्लूट्स या बैक मसल्स पे काम करो, एंड यू विल बी फाइन. पर ये लोगों को पता ही नहीं है. लोगों को ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है ना तो ये तो होना ही चाहिए, ऐसे ही थोड़ी माँ बनते हैं. ये एक फेमस बात है. तो जब आपको लेबर पेन भी होता है, बहुत लोगों को ऐसा बोला जाता है, मुझे भी बोला गया था कि किसी को बताना नहीं चाहिए, शुड कीप क्वाइट. चिल्लाना नहीं चाहिए, चिल्लाओ मत दर्द हो रहा है तो. बट ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी, हम लेबर पेन मैनेजमेंट में जो हमारा सेशन होता है उसमें बताते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लेबर पेन. हाउ आई विल शो यू प्रैक्टिकली. सो इफ यू कैन डू दिस विद मी, आई जस्ट वॉन्ट यू टू पिंच योर 1 ear. जस्ट पिंच इट फॉर लाइक 2-3 सेकेंड. ये थोड़ा सा पेन हुआ, ठीक है, अब हम इसको छोड़ देंगे. नाउ वी विल पिंच दिस ईयर एंड विद दिस यू विल जस्ट डू दिस. Did this pain? Yeah. बहुत ही छोटा सा, but I'm genuinely asking you, did this one pain? No, there was a lot of difference. Lot of difference. Yeah, I could hold it for longer. I could have held on for longer. Exactly. And even if you'll see the after pain, यहाँ आपको कुछ फील ही नहीं होगा कि मैंने पकड़ा भी था. इतनी सी सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको लेबर पेन से, मैं नहीं बोलूँगी चला जाएगा, वो है, वो होगा, पर उसको कैसे मैनेज करना है. आप चिल्लाने वाले हो, कैसे चिल्लाना है, कैसे ब्रीथ करना है, कैसे पुश करना है, उस सारी सिंपल चीज़ों से. टेयरिंग जो होती है, वजाइनल टेयरिंग, विच इज़ वेरी पेनफुल फॉर अ मदर, आप उससे बच सकते हो. देन वाई नॉट अंडरस्टैंड कि कैसे ब्रीथ करना है, कैसे पुश करना है, कैसे पोजीशन करना है. हस्बैंड का क्या रोल है लेबर पेन के टाइम, कि वो एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखे कि अरे बाप रे इसको पेन हो रहा है. तो हस्बैंड्स भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं लेबर पेन के दौरान. सो दे कैन गिव यू मसाजेस.
they can give you hot water bottles, they can remind you to keep sipping drip water because डिहाइड्रेट हो जाते हो आप. आपको कुछ खाने को ला सकते हैं, पीने को ला सकते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं ऐसे बताती हूँ पेशेंट्स को कि आपके हस्बैंड आपको बुद्धू बना सकते हैं. जैसे बच्चे को जब लग जाती है हम उसको बोलते हैं अरे कुछ नहीं देखो यहाँ लग गई है. सेम थिंग दैट टाइम शी जस्ट नीड्स टू डाइवर्ट हर माइंड Okay. बिकॉज इट इज़ अ लॉट ऑफ मेंटली ओवर योर कि Right. पेन हो रहा है. आप सिर्फ उसको वैलिडेशन दो दैट यू नो वी कैन डू दिस, वी हैव डन दिस, तू कर सकती है, मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है, हो जाएगा. यू जस्ट नीड टू ब्रीद, रिमाइंड हर हाउ टू ब्रीद एंड कीप द रिलेटिव्स आउटसाइड. प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि कोई इसके सिर पे होवर नहीं कर रहा है कि अरे इतने से दर्द में डर गई. हमारे Yeah. टाइम पे तो इतना दर्द होता था और मैं तो लास्ट मिनट तक कपड़े धो रही थी और बर्तन घिस रही थी. Oh God, yeah. Yeah, they do that. Yeah, they they you do. know they want to belittle you बेसिकली कि यार तेरा दर्द तो कुछ नहीं है, हमें तो इससे भी ज़्यादा दर्द हुआ था. तो औरत अपने आप को क्वेश्चन करने लगती है यार सच में मेरी बॉडी इतनी वीक है क्या, मैं इतना सा पेन नहीं झेल पा रही हूँ, इन लोग ने तो कितना झेल लिया था. विच इज़ नॉट ट्रू. उसको नहीं सुनना है ये सब. उसको सिर्फ आप इतना बताओ दैट यू नो यू आर अ मदर बिकॉज एक सोल ने आपको चुना है. ऑफ ऑल द मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड ये सोल ने आपको चुना है. फॉर दैट सोल यू आर द बेस्ट मदर. ही और शी हैज़ चोजन यू, यू हैव नॉट चोजन द बेबी. Yeah. तो प्लीज़ लेट इट बी. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली डोंट फ्रेट ओवर नॉर्मल होगा कि सिजरिंग होगा. मैंने तो इतना एक्सरसाइज किया है, सब कुछ किया, मेरे को कैसे सिजरियन सेक्शन हो सकता है. यू नो मेरे तो नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए था. इनफैक्ट मेरी खुद की भी एक इमरजेंसी सिजरिंग सेक्शन थी. बट फ्रॉम the start, even in Garbha Sanskar, I used to always tell my baby, please choose the way you want to come. मैं बिल्कुल इसके बारे में फ्लेक्सिबल थी कि बेबी चुनता है उसको कैसे आना है. जीवन या मरण हमारे हाथ में नहीं है. वी आर नॉट गॉड. द बेबी विल चूज हाउ और ही और शी वॉन्ट्स टू कम. उसको कट होके आना है, उसको फॉरसेप से आना है, वैक्यूम से आना है, नॉर्मली आना है, कब आना है, सुबह आना है, रात आना है, तुम नहीं डिसाइड कर सकते हो. तो प्लीज़ जस्ट लेट इट बी. एक्सेप्ट द वे योर बेबी हैज़ कम. आई गेट सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम मदर्स आफ्टर डिलीवरी. दे मैसेज मी कि मैम मेरा सिजरिंग हुआ, मैंने इतना एक्सरसाइज किया था, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, Oh. व्हाई डिड दिस हैपन टू मी. बट व्हाई डू यू वांट टू थिंक व्हाई व्हाट हैपन टू यू. यू हैव अ हेल्दी बेबी इन योर हैंड. इससे ज़्यादा आप क्यों कुछ सोच रहे हो. यू नो एंड पोस्ट डिलीवरी इज़ the things change. Your body, your emotions, your hormones. लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुमने डिलीवर किया ना, अब तुम तुरंत you should be a happy mother. Yeah. You should be taking care of your baby. Yeah. You should be connected to your baby. It does not happen overnight. एक वीक लगता है और साइंटिफिकली या मेडिकली we say the 6th day you hit your postpartum blues. Okay. Your emotions become rock bottom. You're going to cry. You're going to act crazy. You are not going to feel connected to the baby. है ना. ऐसा लगता है क्या हो गया, क्यों हो गया. एंड व्हाट इज़ द रीज़न. हर कोई जो हॉस्पिटल रूम में आएगा, अरे बेबी कैसा है, किसकी तरह दिखता है, मम्मी की तरह दिखता है, पापा की तरह दिखता है. कोई पूछ रहा है उस लेडी को जो साइड में है कि बेटा तू कैसी है, हाउ इज़ योर बॉडी, आर यू हीलिंग वेल, स्टिचेस में पेन है नहीं है. सो दिस इज़ वॉट आई ऑलवेज टेल माई हस्बैंड. एवरीबडी इज़ गोइंग टू कम एंड सी द बेबी. You have to see your baby, which is your wife. Please first go and talk to her. Ke, thank you. You have given me the biggest gift of my life. How are you feeling? तुझे कुछ चाहिए? Are you comfortable? तुझे कुछ खाना है? मैं तेरी कुछ help कर दूँ? Should I help you in moving? I think that will be a game changer for a mother. Absolutely. And I want to add a little personal experience here also. Yeah. My husband's role when I delivered the first time, it was a normal delivery and I wasn't able to push. So he literally came behind me and he held me from behind and he pushed with me. Wow. And that made a lot of difference. I mean, I knew that this man is there with me and we are pushing the baby out together. Correct. You know, it just felt like that. Correct. And even after, like when Ariza was born, I would be feeding her and I remember मुझे feed करते टाइम immediately भूख लगती थी. मतलब ऐसा लगता था पेट में कुछ है ही नहीं, जिंदगी भर कुछ नहीं खाया है. Right. Now I can't leave the baby and eat.
Yes. So he would run to the kitchen and fix something for me and he would feed me while feeding Ariza. Right. और थोड़े दिन में उसको आदत हो गई थी कि अच्छा इसका फीड टाइम हो रहा है, इसका भी फीड टाइम हो रहा है साथ में, तो मैं भी अपना रेडी करके रखूँ. So that these little things make a lot of difference, of course. Makes a lot of difference. Yeah. क्योंकि पोस्ट डिलीवरी मदर्स इतनी डिलेमा में होती है बिकॉज एवरी पर्सन जो आपकी इतनी केयर कर रहा था सडनली बहुत जजी बन जाता है. Yeah. अरे तू बच्चे को ऐसे कैसे उठा रही है, ऐसे कैसे फीड कर रही है, ऐसे ऐसे रख, वैसे रख, ऐसे बांध, अपना सर बांध. पता है ये बहुत ही एक ये भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं मुझे कि मैम इतनी गर्मी है इन द हॉट एरियाज, दे स्टफ द कॉटन इन द ईयर्स, सर बांध देते हैं वरना हड्डियों को हवा लग जाएगी. तो ये हड्डियों को हवा कैसे लग रही है मुझे तो नहीं पता है. और तो ये है कि पहले के घर जो होते थे कच्चे घर होते थे. हाँ. ईंट के घर नहीं होते थे ना. हाँ. टेम्परेचर रेगुलेट होता था. तो टेम्परेचर वाइज बॉडी कूल, यू नो, इट बिकम्स वेरी कोल्ड आफ्टर डिलीवरी. तो ताकि आपको कोई इन्फेक्शंस ना लगे, सर्दी ना लगे, इसलिए सर बांध के रखते थे, सॉक्स पहन के रखते थे, स्वेट. पर अब तो तुम घर में बैठे हो, एसी में बैठे हो, तो कहाँ से तुम सोच रहे हो कि तुम उसका सर्वर बांध के उसको पैक कर दो. दूसरा होता है पानी नहीं पीने देते आफ्टर डिलीवरी. Right. क्या बहुत कम पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, वरना तेरा पेट फूक जाएगा. हाँ, ये सारी चीज़ें हैं इंडिया में. आप Right. पोस्ट डिलीवरी अगर आप सुनोगे एक एक मिथ, माय गॉड. आप जब साउथ इंडिया में जाओगे वो लोग बोलेंगे रोटी नहीं खानी चाहिए, पेट फूक जाएगा. नॉर्थ इंडिया में जाओगे वो लोग बोलेंगे चावल नहीं खाना चाहिए, पेट फूक जाएगा. टमाटर नहीं खाना चाहिए, दूध खट्टा हो जाएगा. कैप्सिकम और घरीज मिर्ची नहीं खाना चाहिए, दूध तीखा हो जाएगा. आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, दूध बच्चे को सर्दी लग जाएगी. Wow. I can go on and on and on with that kind of comments I get. कांदा नहीं खाने चाहिए, दूध में कांदे की बास आएगी. तो बेसिकली सिर्फ मेथी के लड्डू खाने चाहिए. हाँ. ओके. तो पोस्टपार्टम न्यूट्रिशन को इतना साइड ट्रैक कर देते हैं, विच इज एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप डिलीवरी के बाद क्या खा रहे हो. टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, लेट्स रिवाइंड अ लिटिल एंड कम टू द प्रेगनेंसी फर्स्ट. कि प्रेगनेंसी में बहुत सी महिलाएं अपने वेट को लेके बड़ा परेशान होती हैं कि मेरा वेट इतना बढ़ गया, किसी का 20 किलो बढ़ गया, किसी का 30 किलो बढ़ गया, किसी का मेरा 10 किलो ही बढ़ा था. तो ये जो वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में, किस हद तक हेल्दी वेट गेन होता है और क्या खाना चाहिए, किस तरह की डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल से कि नाउ यू हैव टू ईट फॉर 2, तो डबल खाना खाओ और सब कुछ खाओ, मतलब जरा सी भी भूख ना लगे आपको. क्या वो सही है? या डाइट करो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं चीनी मत खाओ अनहेल्दी है, या ये चीज़ मत खाओ अनहेल्दी है, तो लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट डाइट टू फॉलो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सो दैट यू हैव अ हेल्दी वेट गेन एंड द बेबी इज ऑल्सो हेल्दी? सो फॉर ओबीज पीपल जो ऑलरेडी ओवरवेट है, उनको पता है कि वो ओवरवेट है, दे कैन गो फॉर 6 to 8 kgs ताकि आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो. और अगर आपका वेट अंडर वेट है, आप ऑलरेडी ऑन द लीनर साइड है, तो आप 8 to 10 kgs गेन कर सकते हैं एंड इट्स ओके. एंड मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे मेरा खुद का भी सिर्फ 6 to 8 kgs ही गेन हुआ था, एंड हैड अ वेरी स्मॉल टमी. तो हर कोई आपको बोलने लगेगा कि आप बहुत वीक हो, बच्चा बहुत वीक है, आपको डबल खाना चाहिए, पेट ही नहीं दिख रहा है. ऐसी कोई बात नहीं है. पेट दिखना या ना दिखना से बच्चे की हेल्थ की कोई पैरामीटर डिसाइड नहीं होती है. ठीक है, अगर बच्चे का वेट गेन ठीक है, बच्चे की ग्रोथ ठीक है, हर स्कैन में बच्चा ग्रो हो रहा है, देन यू आर एब्सोल्युटली ओके. ओके. तो खाना क्या है, आप वो खाए जो आपको हेल्दी और न्यूट्रिशियस लगे. और मैं ऐसे कोई डाइट फॉलो करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलती हूँ. और इनफैक्ट 9th month का जब सेशन होता है हस्बैंड्स के साथ में, उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ जो आपका मन करे वो खाओ. जो भी आपके मन में आए कि यार मुझे ये खाना है, आप जाके खाओ. इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 पैकेट मैगी लेके खा लो. पर मैगी मन में आई है तो मे बी दिस मच, वन स्मॉल पोर्शन, इट्स ओके. ऐसे कुछ एकदम ग्रेट नहीं हो जाए कि ये तो बिल्कुल खाना ही नहीं है. तो हर चीज़ एक छोटे से लिमिट में आप खाओ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. सैटिस्फाई योर एवरी क्रेविंग. राइट. और ऐसी कोई चीज़ जो न्यूट्रिशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है प्रेगनेंसी में? सो दैट इज़ फॉलेट रिच फूड, बिकॉज विटामिन B12 जो होता है, और हर प्रेग्नेंट लेडी इनफैक्ट प्रेगनेंसी में आयरन और फॉलेट की मेडिसिन भी खाती है ताकि आपका न्यूट्रिशन और बेबी की स्पाइन और ग्रोथ अच्छे से हो. सो ऑल द B12 रिच फूड जिसमें होगा नाचनी, बीट रूट, पोमोग्रेनेट्स, हैव गुड
न्यूट्रिशियस B12 रिच फूड. अगर और कुछ नहीं समझे तो कर्ड, दही, दूध, ये सब भी अच्छा है, आप खा सकते हैं. And what about cakes, ice creams, burgers? तो आइसक्रीम इज़ अ क्रेविंग, आई थिंक, जो हर किसी को होती है. मुझे भी होती थी. आई यूज टू हैव एवरी डे एंड देर इज़ नो हार्म इफ़ यू आर नॉट हैविंग जेस्टेशनल डायबिटीज़. आपका वेट गेन ज़्यादा नहीं है. तो एक्चुअली जो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, जो मुझे एंड तक थी, Okay. तो जिनको भी ये वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, अ कप ऑफ वनीला आइसक्रीम just 15-20 minutes before having your main food helps you very well. Okay. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट गेन ऑलरेडी है, तो आप सिर्फ आइस चिप्स पे यू कैन जस्ट सकल ऑन आइस चिप्स एंड देन हैव योर फूड, ताकि वो जो वॉमिटिंग सेंसेशन है वो कम हो जाएगा. Okay. नाउ टेल मी कि ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स आप बोल रहे हैं, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया या बाल गिरने की प्रॉब्लम हो गई या मूड स्विंग्स जो बहुत होते हैं, ये डिलीवरी के बाद कब तक रहते हैं या बढ़ते हैं, घटते हैं? बहुत बढ़ जाते हैं. All of these problems? All of these problems. They almost go 10x. मतलब even your diabetes and blood pressure if you the have. diabetes and blood pressure may or may not come down. Okay. तो एक बहुत क्लोज टैब रखना पड़ता है 6 months तक. आप चेक करें. सो गो फॉर अ रूटीन चेकअप एट 6 months दैट सब कुछ वापस लेवल पे आया है या नहीं आया है. सो दोज हु हैव हाइपरटेंशन, उनकी शायद आईसाइट भी बदल जाती है. दे गेट स्पेक्टिकल्स, नंबर्स आ जाते हैं. जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनका बढ़ जाता है, रह जाता है, या थायराइड रह जाता है. काफ़ी लोगों का बेस लाइन पे आ जाता है. इट डिपेंड्स ऑन आपका वापस पीरियड साइकिल कब आ रहा है, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड होता है. नाउ कमिंग टू हेयर फॉल विच इज़ द मेन कंसर्न पोस्ट डिलीवरी, तो इसमें भी अपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जब बच्चा हंसने लगता है ना, बाल गिरते हैं. तुम्हारा बच्चा हंस रहा है ना, अब तुम्हारे बाल झड़ने लगेंगे. Oh Lord. Now the logic behind this is your baby starts laughing at 3.5-4 months. That is the milestone at 3.5-4 months that the baby starts laughing. And उस टाइम बॉडी का ईस्ट्रोजन सबसे लो पे ड्रॉप होता है. एंड ऑब्वियसली 3.5-4 months पे यू विल सी लाइक वन बंडल कमिंग आउट. तो ताकि लेडीज़ बहुत ज़्यादा पागल ना हो जाए, ऐसे बोलते हैं ना, बच्चा हंस रहा है इसलिए बाल गिर रहे. बच्चा हंसने से बाल नहीं गिर रहे. ईस्ट्रोजन तुम्हारा ड्रॉप हुआ है. 3 months to 9 months ड्रॉप होगा, हेयर फॉल होगा. नो मैटर वॉट यू पुट ऑन योर हेड और ईट, होगा. बट वो अपने आप रुक जाता है. अपने आप रुकेगा और नए बाल आएंगे, हेल्दियर आएंगे. सो डोंट वरी, डोंट बिकम क्रेजी कि अरे बाप रे अब तो मैं टकली हो रही हूँ. And anything that mothers can do with their nutrition to avoid the hair fall or to help so, it? there is a category of nutritious food that will also help with breast milk production, जिसमें सबसे मेथी फेमस है अपने यहाँ. तो मेथी, ओट्स, गार्लिक, बाद में फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, ये सारी चीज़ें आप खाने में लें ताकि आपका भी डाइजेशन बेटर होगा, हेयर हेल्थ भी बेटर होगी. सो फॉर दैट. Okay. And another thing which mothers really worry about is, एक तो प्रेगनेंसी वेट हो गया, अब पोस्ट प्रेगनेंसी वेट को लेके भी बड़ी परेशान होती हैं. करेक्ट. मतलब मुझे लगता है कि बहुत प्रेशर भी डाला जाता है सोसाइटी से मदर्स के ऊपर कि अरे अब तो बेबी हो गया, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया, वेट नहीं लूज हुआ, क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो टेल मी इन अ हेल्दी वे, व्हाट इज द राइट टाइम फॉर अ मदर टू स्टार्ट वरिंग अबाउट हर वेट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड नॉट वरी अबाउट योर वेट. बड़ी से बड़ी एक्ट्रेसेस को आपने देखा होगा 6 महीने 8 महीने देर इज फ्लॉन्टिंग देयर पोस्ट पार्टम वेट. एंड हाउ यू कैन सी दीपिका पादुकोण ऑल्सो, दे आर फ्लॉन्टिंग इट. एंड व्हाई शुड वी वरी अबाउट इट? क्यों हम वरी करते हैं? क्योंकि दूसरा कोई आके बोल रहा है पेट रह जाएगा. तूने पेट नहीं बांधा ना, अब पेट रह जाएगा. बट पेट रह नहीं जाता है. इट इज़ ऑल अबाउट करेक्टिंग योर कोर, करेक्टिंग योर diastasis recti. Diastasis recti are 2 muscles which are in the abdomen. They get separated at the time of pregnancy. उसको फिर से करेक्ट करना है, कोर पे वर्क करना है, and your back and your tummy will be back to where it was. But you don't have to jump into it. आप as early as 40 days स्टार्ट कर सकते हो, इट इज़ योर चॉइस, या एज लेट एज 6 months स्टार्ट कर सकते हो, इट इज़ योर चॉइस. जब आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो, आपके बेबी सेटल्ड है, आपको करना है, तब आप करो. नॉट बिकॉज कोई XYZ आके बोल रहे तू कितनी मोटी रह गई है. नहीं, जब आपको लगे कि वो अंदर से एक कॉलिंग आए कि नाउ आई शुड वर्क ऑन माई हेल्थ, देन यू कैन स्टार्ट. एंड डाइट से आई डोंट मीन डोंट गो ऑन क्रैश डाइट्स इमिडिएटली, क्योंकि दैट आपकी बॉडी ने 9 months लगाए हैं एक पूरा ह्यूमन बीइंग बनाने में. आप सोचोगे मैं 9 दिन में पतली हो जाऊंगी, नहीं होने वाला है. कम से कम 9 महीने तो लगेंगे उस बॉडी को पूरा रीसेट होने में.
each and every cell of your body has to reset itself. It has to regrow, and that is why my channel is also called Reborn, because when you are becoming a mother, you are born again. Yeah. It is a new birth. So please allow your body also to take its time. जब आपको लगे कि चलो अब वेट ज़्यादा हो रहा है, मेरी मिडनाइट क्रेविंग्स बहुत हो रही है, जो आई थिंक डिलीवरी के बाद बहुत होती है, यू नो, यू फील लाइक ईटिंग स्वीट, Yeah. तो जस्ट स्विच इट विथ सब्सटीट्यूट्स विच आर नॉट दैट कैलोरी डेंस. अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वीट क्रेविंग्स हो रही है, आप खजूर खा लो, आप राजगिरा की चिक्की खा लो, आप कोई पीनट बटर सैंडविच खा लो, जस्ट replace it with cakes and ice creams. That much you can do, I think, for yourself. And also just educate us कि जो mothers pregnancy के immediately बाद, delivery के immediately बाद workout करती हैं, does it affect the quantity of the milk? Yes, it does affect by a bit, because your body will perceive it as stress. Okay. So it is not about exercise, it is about stress. Breast milk comes from your इमोशंस. ओके, जब बच्चा सकल करता है तो जो हॉर्मोन्स और इमोशंस ब्रेन में जाते हैं, दैट इज़ लीडिंग टू लेट डाउन. तो इनफैक्ट एक्सरसाइज हो गया, डिप्रेशन हो गया, कोई स्ट्रेस हो गया, कब झगड़ा हो गया, आप देखोगे कि आपके हस्बैंड के साथ कोई मैसिव फाइट हुई है, इमीडिएटली योर मिल्क सप्लाई विल ड्रॉप. आपने कोई बहुत हैवी वर्कआउट कर लिया, मिल्क सप्लाई विल ड्रॉप, बिकॉज बॉडी को लग रहा है ये स्ट्रेस है. द मिल्क इज़ फॉर्म फ्रॉम योर ब्लड. If all the energy is going to go in some other direction, my milk supply will obviously come down. तो मिल्क सप्लाई का प्रॉब्लम बहुत लेडीज़ को होता है, एंड दे फाइंड क्विक फिक्सेस कि क्या खाने से दूध वापस आएगा. कुछ मत खाओ, जस्ट मेंटली कनेक्ट विथ योर बेबी. और अगर आपको लग रहा है कि पोस्टपार्टम स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, फाइट्स हो रहे हैं, प्लीज़ सीक हेल्प. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि ये माँ बनने के बाद पागल हो गई है, ये कैसे भी बिहेव कर रही है. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. होता है और बहुत कॉमन है. अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, अब सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ वन थिंग, पोस्टपार्टम रेज इज़ मोर रेलिवेंट. आई फील यू गेट वेरी एंग्री. हैव यू एवर फेल्ट दैट? 100%. डिलीवरी के बाद यू गेट वेरी एंग्री ऑन स्मॉल थिंग्स. Yeah. और लोग बोलेंगे इतनी सी बात पे क्या इतना गुस्सा कर रही है, पर ये हमारे हाथ में नहीं है, ये जस्ट हार्मोनल सर्जेस है. और ये होता है तो तुम उसको एड्रेस करो और समझो कि आप प्लीज़ रिएक्ट मत करो, उसका मिल्क सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा. और फिर तुम बोलोगे तेरा दूध कम आ रहा है इसलिए बच्चा रो रहा है, दूध कम आ रहा है इसलिए फॉर्मूला चढ़ा दे. जो और एक बात अगर मैं ऐड करना चाहूँ, फॉर्मूला फेड मदर्स को बहुत शेम किया जाता है कि तू फॉर्मूला पिला रही है, इतनी आलसी है, फॉर्मूला पिला रही है. और वही जो माँ फॉर्मूला नहीं पिला रही है उसको बोल रही है खुद का ही दूध पिलाएगी, ये मोटा नहीं होगा, तुझे तो फॉर्मूला पिलाना चाहिए. तो करना क्या है, फॉर्मूला पिलाओ या नहीं पिलाओ. तो इट इज़ एक्चुअली ओके इफ़ यू हैव टू फीड योर बेबी. फेड बेबी इज़ द बेस्ट बेबी. ठीक है, वो भूखा नहीं रहना चाहिए. भले आप आपका दो, ऊपर से दो, जैसे भी दो, बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए. जस्ट बिकॉज कोई बोल रहा है कि उसको फॉर्मूला दे दो तो वो हेल्दी बनेगा, चब्बी बनेगा, डोंट डू दैट. या जस्ट बिकॉज कोई बोल रहा है कि तू कितना फॉर्मूला पिलाती रहती है, तुझे दूध नहीं आता है, यू नो, इवन द बेसिक मेड्स विच कम इन योर होम, एक मालिश वाली से एक मेड, एवरीबडी स्टार्ट्स जजिंग यू. ऊपर का दूध दे रही है कि तेरे दूध नहीं आ रहा है, दूध कम आ रहा है. इट फील्स सो बैड एंड दे डोंट इवन रियलाइज दैट बीइंग अनदर वुमेन आप किस चीज़ पे कमेंट कर रहे हो और क्यों कर रहे हो. कौन तुम्हें ये राइट दे रहा है जज करने के लिए कि उस मदर का दूध उसके लिए इनफ है या नहीं है. आई थिंक एवरी मदर हैज़ एन इंट्यूशन हाउ टू फीड हर चाइल्ड. एंड जस्ट अ वेरी बैड जोक इज कमिंग इनटू माय माइंड. आपके घर में खाना खाते खाते दाल खत्म होगी तो आप स्विगी कर लेते हो ना फटाफट, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. एग्जैक्टली, इट्स ओके. एग्जैक्टली. तो मैनी मदर्स आस्क मी विल इट हार्म माय बेबी, इज यू नो. मैं बोलती हूँ कि भले आज आप कुछ भी पिला लो, 5 साल बाद तो वो बर्गर और पास्ता ही खाने वाले, फिर तुम क्या कर लोगे. तो डोंट लूज योर मेंटल हेल्थ ओवर ओ माई गॉड मेरा दूध नहीं आ रहा है और मुझे फॉर्मूला लेना पड़ रहा है. उससे क्या होता है, तुम और ट्रैप में गिर जाते हो कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जो बन रहा है वो भी बंद हो जाएगा. एब्सोल्युटली. सो डोंट फॉल इनटू एनी ऑफ दिस आई कुड से ट्रैप, बिकॉज पोस्टपार्टम हेल्थ इज समथिंग आई थिंक बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. इट कैन मेक और ब्रेक और मदर. एक इंसान की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है पोस्ट डिलीवरी, बिकॉज मैंने जो बोला रेज,
छोटी छोटी चीज़ें याद रहती है कि इसने मुझे ऐसा बोला था, इसने मुझे प्रेगनेंसी में ऐसा ट्रीट किया था, ये तो मुझे डिलीवरी के बाद मिलने भी नहीं आई। इतनी छोटी छोटी बातें आपको एकदम दिल में आई वुड से घर कर जाती है, एंड दैट ऑल अफेक्ट्स योर मिल्क सप्लाई। सो प्लीज़ जस्ट कनेक्ट विथ योर बेबी और बाकी सब चीज़ें साइड में रखो। और एक सिंपल बात बोलूँगी टू ऑल द मदर्स आउट देयर, दिस इज़ जस्ट अ फेज़। एक टाइम आएगा जब बच्चा अपने आप खाना खाएगा, एक टाइम आएगा जब उसको आपकी ज़रूरत भी नहीं होगी, एक टाइम आएगा जब वो शायद आपको सिर्फ एक फ़ोन करेगा कि हाँ मॉम कैसे हो। तो फॉर नाउ द बेबी नीड्स यू एंड ओनली यू। तो डोंट लेट एनीबडी एल्स कमेंट कि तुम अच्छी माँ हो कि नहीं हो। तुम एक अच्छी माँ हो और उसलिए उस बेबी ने आपको चूज़ किया है, एंड देयर इज़ नथिंग दैट कैन चेंज दैट। So that is what I want to tell to all the mothers out there. That is such a beautiful message. I don't know what to ask you after this, but I do have one question, which is also very relevant for, like we already spoke a little about C-section and normal delivery. Yeah. तो ये भी थोड़ा बताइए कि जैसे हो जाता है कि लोग बोलते हैं कि अरे मैंने बहुत एक्सरसाइज की और मेरी नॉर्मल होनी चाहिए थी, नहीं हुई, सी सेक्शन हो गई। तो सी सेक्शन को लेकर इतना ज़्यादा टैबू क्यों है? लाइक इज इट बैड? Why do people get so scared of having a C-section delivery? They are not scared. They are scared of the people defaming them कि देख इतना सा दर्द भी नहीं झेल पाए, एक बच्चा नहीं पैदा कर पाए, उसके लिए भी तुझे ऑपरेशन But what about the part that you know, layers and layers of abdomen are being cut? What is the surgical implication? So the 7 layers of your body are being cut to deliver a baby. It is like a massive abdominal surgery. तो जब कोई भी दूसरी सर्जरी होती है, तुम्हारा केयर होता है, 1-2 महीने तुम रेस्ट पे होते हो। ये एक ऐसी सर्जरी है कि इमीडिएटली नेक्स्ट आवर तुमको बेबी को फीड करना है एंड 24/7 उसका ध्यान रखना है। तो इट इज़ ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट। रिकवरी जो एक वेजाइनल डिलीवरी में होती है वो बहुत ईजी होती है। मे बी विद इन 1 or 2 hours शी इज़ वॉकिंग एंड शी इज़ फाइन, बट इन अ सिजरिंग सेक्शन इट टेक्स अ लिटिल टाइम कि आपकी बॉडी रिकवर हो। बट इफ़ यू हैव बीन एक्सरसाइजिंग, तो जो लोग ये बोलते हैं अरे एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा है, सिजरिंग में होने वाला है, बट जिस औरत ने एक्सरसाइज किया है, यू विल सी विद इन 24 hours वो उठ पा रही है, चल पा रही है, उसकी रिकवरी बेटर है। Even in a C-section? Even in a C-section. एंड C-section में आप जितना जल्दी उठ के चलने रखोगे दैट मच बेटर फॉर योर बॉडी। तो एक्सरसाइज कभी भी वेस्ट नहीं है कि क्या मतलब है। करेक्ट। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, आपकी रिकवरी बेटर होगी। सी सेक्शन को लेके इतना टैबू क्यों है? क्योंकि लोगों ने ऐसे दिमाग में डाला हुआ है सी सेक्शन के मतलब जिंदगी भर तुझे बैक पेन रहेगा, बिकॉज तुझे इंजेक्शन दिया गया है बैक में, जो आजकल नॉर्मल डिलीवरी में भी देते हैं इफ़ यू हैव टेकन एन एपिड्यूरल, राइट, एंड इट इज़ जस्ट एन एनेस्थेशिया इंजेक्शन, और बैक पेन उसके वजह से नहीं होता है, जो एक बहुत बड़ा मिथ है कि सिजरिंग किया तो अभी बैक पेन तो रहने ही वाला है। बैक पेन इसलिए होता है इज बिकॉज इन सिजरिंग सेक्शन यू कांट फीड स्ट्रेट, बैक सपोर्ट बहुत परफेक्ट होना चाहिए, एंड बिकॉज योर abdomen has been cut, you're not that comfortable in sitting, so that is why your posture is bad and your back starts paining, and that's why in cesarean section moms the back pain is a little more than a normal delivery mother, because she's obviously immediately comfortable. And with that I want to add, normal delivery is also not easy, उनको भी cuts आते हैं, उनको भी stitches होते हैं, उनके भी tears होते हैं, right. तो either ways it's not easy, ऐसा नहीं कि one is better than the other. Both are equally difficult and both moms are doing equally great job. Just want to add my own experience there, that my first time was a normal delivery, second time was a C-section, and there was no back pain either time. Great. और Because you had been working out. First time I'm भी sure. मैंने epidural लिया था, so there was an injection in the back. C-section में तो of course there was an injection in the back. There was no back pain. There was no complication in both deliveries as such. And recovery time I think दोनों में ही मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत similar ही था, because even in a natural, in a normal delivery, there was a lot of weakness in the body. I had stitches in the vagina, which took time to heal. So वहाँ discomfort था, और चलने फिरने, because so much pushing had happened, you know, there was a lot of protein loss which happened in the body. तो उससे भी रिकवरी में टाइम लगता ही है। ऐसा नहीं है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी है और सी सेक्शन नहीं हुआ है तो आप दौड़ने लगोगे थोड़े दिन में, वो नहीं हुआ था। और सी सेक्शन में भी आई थिंक इट वाज सिमिलर, स्टिचेस जैसे जैसे हील होते गए, आई थिंक विद इन 7 days आई वाज वॉकिंग अराउंड प्रीटी कंफर्टेबली, एंड इट वाज नथिंग वाज एज बैड एज इट seemed at the time that I had a C-section. So yeah. But before signing out, I want to also ask you quickly the importance of
exercising throughout your pregnancy and postpartum also? Postpartum. So obviously, like ma'am just said, that your recovery was very good because I'm sure you had been exercising. Yeah. सो दैट इज़ द मेन थिंग. और लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज क्यों करना है, घर का काम है ना इतना, हम कर रहे हैं. बट एक्सरसाइज इज समथिंग दैट जो आपके हॉर्मोन्स है उसको भी रेगुलेट करता है. एक सिंपल वॉकिंग भी अगर आप कर पाओ, इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सन एंड डोंट हैव टाइम, अगर आप 15-20 मिनट्स ऑफ वॉक भी एवरीडे कर पाओ, तो वो आपका जो ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है, जो आपको मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करता है, आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. और वो है एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट. हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट सोचते हैं कि एक्सरसाइज किया मतलब नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए. वैसी बात नहीं है. द लॉन्ग टर्म बेनिफिट इज आपके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि जब आपको आपके बच्चे को उठा उठा के फीड करना है, 10 बार उसके पीछे भागना है, योर बॉडी एंड द मसल्स हैव द स्ट्रेंथ to do it. Correct. And just also want to clarify here कि मेरी पहली डिलीवरी में मैं योगा करती थी और वॉक करती थी. उसके बाद आफ्टर माई डिलीवरी आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम एंड डूइंग वेट ट्रेनिंग. तो सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने वेट ट्रेनिंग की. सो लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी कि वेट ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो, सिर्फ योगा करनी चाहिए. तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जो आप कर रहे हो वो करना चाहिए. आपको जो कंफर्टेबल है वो करना चाहिए. राइट. अगेन डोंट फॉल इनटू फैड्स कि सारे ही वो कर रहे हैं तो मैं भी वो कर दूँ. Look at your body, look at your body type, and that is why we are childbirth educators, because in pregnancy you can Google all the information. आपको सारे वीडियो सब कुछ मिल जाएगा. और एट द सेम टाइम आपको घर से भी एडवाइस मिल जाएगा कि ये करना है, वो करना है, वो करना. तो सही क्या है? तो दैट इज़ व्हेन अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर लाइक आवर स्टेप्स इन, हु कैन गाइड यू दैट योर प्रेगनेंसी इज़ दिस इज़ योर हिस्ट्री. आपके बच्चे की हेल्थ ऐसी है, आपका प्लेसेंटा इधर है, आप में ये कॉम्प्लिकेशंस है, तो आपको ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है या करनी है. प्लीज़ कोई भी रैंडम वीडियोज़ या यूट्यूब वीडियोज़ देख के चालू ना कर दे, फिर ब्लीडिंग हो जाएगी या गॉड फॉरबिड वट एवर. करेक्ट. सो प्लीज़ डू इट अंडर अ पर्सन whom you can trust, be it your diet, be it your nutrition, be it exercise, be it anything. I think it is very important आज के ज़माने में कि आप एक चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, एक पर्सन को रखें इन द लूप. सो वी ऑल्सो हैव अ फ्री प्रेगनेंसी सपोर्ट ग्रुप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स हु हेल्प ईच अदर. राइट. बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि मुझे सिर्फ एक पेन हो रहा है, इज दिस नॉर्मल? बस कोई दूसरा बोलते कि हाँ नॉर्मल है, मुझे भी हो रहा है, ओके, then you're okay. Otherwise you keep thinking कि ये पेन हो रहा है, अब क्या. हाँ. So it is just a good support group that you need in pregnancy, a guidance that you need, and you'll be good to go. Okay, so I think let's make this session a little fun and talk Yeah. about some amazing and atrocious pregnancy myths. Yeah. I'll start with Yeah. one that I heard. तो जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं वॉक करती थी गार्डन में नीचे. तो हमारे बिल्डिंग के गार्डन, इसी बिल्डिंग में एक्चुअली, आई वाज लिविंग हियर एट दैट टाइम. तो नीचे गार्डन में एक पॉइंट पे किसी ने सांप देखा था. अंधेरा था वहाँ पे. तो मुझे कहा गया था, बच्चे सब भाग रहे थे कि यहाँ नहीं चलना है, आंटी सांप है. देन सम लेडीज केम एंड सेड, आप चल सकते हो, आप प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट लेडीज को सांप नहीं काटता. Why? I was like, okay, do I really want to find out now or no? And why is that? आप इच्छाधारी नागिन बन गए हो? I don't know, but मैं find out नहीं करूँगी. आप प्रेग्नेंट हो, ट्राई करो. मैं नहीं ट्राई करूँगी, मैं चली गई. तो ये तो बिल्कुल ही मिथ है यार, तो मैंने भी पहली बार सुना है. You tell me something. तो एक बहुत फेमस मिथ है कि चाय पीने से बच्चा काला होगा. Yeah, oh, that's my favorite. चाय मत पियो, बच्चा काला हो जाएगा. मैंने दोनों टाइम चाय पी है, जिंजर टी, एंड माई बेबी वॉज बॉर्न वेरी फेयर. नाउ ऑब्वियसली शी इज ऑफ माई कलर, बट शी वॉज बॉर्न वेरी फेयर. Yeah. बट ये चाय पीने से कोई बच्चा काला नहीं हो जाएगा. हाँ. इट इज क्यों ये मिथ लाया गया कि दूध पीना बेटर है, बिकॉज इट इज हाई इन कैल्शियम. Correct. और कैफीन थोड़ा 325 मिलीग्राम्स. तो दिस इज़ फॉर ऑल दोज मदर्स जो चाय या कॉफ़ी पीना चाहती है, आप पी सकते हो. 325 मिलीग्राम्स अ डे इज़ द अलाउड रेंज. तो आप 1 या 1.5 कप ऑफ टी या कॉफ़ी इज़ ओके. तो प्लीज़ ये मिथ में मत गिरो कि यार चाय पीने से बच्चा काला होगा, कॉफ़ी पीने से बच्चा काला होगा. वो सिर्फ इसलिए बोलते थे ताकि आप दूध ज़्यादा पियो. Correct. और कैफीन कम करो. Correct. So then there's another interesting one. I used to wear these, you have these beautiful maternity clothes nowadays जो अच्छे से आपको फिट भी आते हैं, लेकिन comfortable भी होते हैं. Correct. They're not like suffocating you or yeah. anything. So I was walking in one of I had 2-3 of these ganjis which I used to wear, those maternity ones. So somebody told me, इतने टाइट कपड़े पहनोगे ना, she looked at me straight in the eyes, तो बच्चे का दम घुट जाएगा. I got so scared. I was like, oh my God, I'm a murderer. और इसके साथ और भी ऐड करते कि ऐसे पेट ढक के चलना चाहिए. Yeah. नजर लग जाती है.
I love these ones. What और else? ऐसे बहुत सारे, ऐसे डिलीवरी के बाद भी, जैसे मैंने बोला हड्डियों में हवा घुस जाती है, हाँ. सर में हवा घुस जाएगी, हड्डियाँ क्या खाली हो Oh जाएगी. God. तो मैंने जब ये 2-3 ऑल दीज मेड्स और जस्ट ओवर पावरिंग में, मैंने बोला जब सबको ही ये सब कुछ हो रहा है, हाँ. तो मुझे एक इंसान बता दो जिसने सब कुछ किया और उसको कुछ नहीं हुआ. कुछ नहीं हुआ. Then there's another one कि as a pregnant woman आपका जब कुछ खाने का मन करता है ना, समझो पड़ोसी के घर से कुछ खुशबू आ रही है, आपका मन कर रहा है, तो जाओ बेल बजाओ और खाओ, वरना बच्चा बच्चे की पैदा लार टपके. क्या. मैंने कहा नहीं यार, ऐसा बच्चा तो मैं नहीं पैदा कर सकती, मैं जाके लोगों के घरों की बेल्स बजाऊंगी और खाऊंगी. और बच्चे की लार तो टपकने वाली है Yeah. 4th-5th मंथ में, और फिर लोग बोले कि तूने कुछ तो नहीं खाया, इसलिए देख उसकी लार टपक रही है. So this was a very fun session and a very educative one also, doctor. I just want to leave my audience on the note कि no two pregnancies are the same. तो किसी की सुनी सुनाई बातों पर मत जाइए. एंड लाइक डॉक्टर रीमा इज सेइंग कि चाइल्ड बर्थ एजुकेटर से एसोसिएट कीजिए, इनसे एसोसिएट कीजिए, सो दैट यू आर इन द सर्कल एंड यू नो योर प्रेगनेंसी थ्रू हर, ताकि आपको भी समझ में आए कि मेरी बॉडी में यहाँ पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मैं ये गलत कर रही हूँ, या मुझे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, डायबिटीज़ हो रही है, क्या सब है. यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड योर प्रेगनेंसी बेटर. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे फॉर मी from this chat was the role of a father. हम हमेशा सोचते हैं कि fathers का रोल बच्चा पैदा होने के बाद ही स्टार्ट होता है, but that's not the case. You can still be a very, very integral part of your wife's pregnancy and make that bond with your child in the womb itself. गर्भ संस्कार is something that I didn't know about, and I don't think कि मैंने even like mindlessly ऐसा कुछ किया हो, knitting या कुछ ऐसा कुछ आइडिया नहीं था. I wish I'd met you sooner. I would have joined your class for sure. But if I get pregnant third time, which is like totally not happening, then for sure, and for all those women out there who are pregnant or looking to get pregnant, please do look at Garbh Sanskar. Sounds really amazing and comes with a scientific backing as well. Thank you so much, doctor, for joining us. Thank you so much, and I love this podcast of yours, and I want to say that this is all about empowering women, that giving them the right to choose how you want to deliver and where and what will be you after delivery. Please don't get disheartened by other people's dictation of a perfect mother. Yeah. Do what you want to do. एक क्विकली एक नोट ना आप अदर पीपल के लिए भी छोड़ दीजिए कि जो लोग मदर्स को कुछ कुछ आके बोलते हैं उनके लिए भी एक मैसेज छोड़ दीजिए. जो लोग ये कुछ आके अपनी मदर्स को बोलते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा ब्रेन में रिवाइंड करके सोचे कि जब आपको ये बोला गया था कि आपको खुशी फील हुई थी, then why do you want to pass this toxicness forward? I think we are a generation कि हमें ये toxicness stop कर देना चाहिए. I would never want to give my daughter all this postpartum myths. तो प्लीज़ आप जब किसी और को कुछ एडवाइस दे, पहले तो ये सोचे कि आपको रीज़न पता है, या जब एंड एज अ प्रेग्नेंट और अ न्यू मदर जब अगर आपको कोई आके बोले कि ये तो खाना ही चाहिए या बच्चे को तो मलाई से घिसना ही चाहिए और ब्रेड से घिसना है, पूछे क्यों. क्या आपके पास कोई रिसर्च है, क्या आपके पास कोई रीज़न है, कोई एविडेंस है? अगर है देन यू टॉक टू मी, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच, आई नो व्हाट टू डू. Thank you so much. That was a very loud and clear message. I hope everybody got it. This is both of us signing out. Love and peace from us to you.